Dear students, welcome to your English class. Today we are going to start our next chapter, Journey to the End of the Earth, which is taken from Vista's book. First of all, I will describe you about the title of the chapter. Title of the chapter is Journey to the End of the Earth. So look at here, this chapter, the lesson revolves around the world's most preserved place, that is Antarctica. Okay, and this chapter, Journey to the End of the World, tells you about the geographical view. And this chapter is written by Tishani Doshi, who was an Indian poet, Indian writer. Okay, and this chapter is not only a fiction. Fiction means the imaginary tale, imaginary story. Actually, this chapter is real life narrative. Tishani Doshi, the author, describes her journey to the coldest, driest and windiest continent in the world, that is Antarctica. Actually, not many people have been there, but out of the few that have, Tishani Doshi is one of them. Okay, a South Indian person who went on an expedition with a group of teenagers affiliated with Students on Ice program. एक्चुअली वो किसके साथ गई थी? ग्रुप ऑफ टीनेजर्स के साथ. कौन सा प्रोग्राम चल रहा था? स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम. और ये साउथ इंडियन गर्ल, शी वेंट विद अ ग्रुप ऑफ टीनेजर्स हु टेक्स यंग माइंड्स टू डिफरेंट एंड्स ऑफ द वर्ल्ड. वो यंग माइंड्स को कहाँ लेकर गई? टू द डिफरेंट एंड्स ऑफ द वर्ल्ड. सो यू कैन से दैट दिस चैप्टर इज अ ग्लिम्स ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द Antarctica. Okay, now we are going to start our chapter. Look at here, Journey to the End of the World. As I described you earlier that it is written by Tishani Doshi. First of all, I am going to read before you read. If you want to know more about the planet's past, present and the future, the Antarctica is the place to go to. First of all, Tishani Doshi, the author, talks about her journey to one of the coldest, driest and windiest continent on Earth, Antarctica. So she informs us that if you want to know about the planet's past, future and present, so which is the best place? Antarctica. Bon voyage. Bon voyage here stands for have a wonderful journey. So look at here. Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel and the research ship's name was Academic Shokolaski. Look at here, early this year. Early this year means in the beginning of this year, I found myself aboard a Russian research vessel. Russian research vessel, Russian means Russian research की ये क्या थी? शिप थी जिसका नेम क्या था? Academic Shokolaski. ओके, मैंने कहाँ पर पाया अपने आप को? इस शिप पर. एंड दैट शिप वॉज हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड द विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, Antarctica. As I described you earlier, the author is a South Indian person, okay, who began her journey from Madras, and on her voyage she crossed many time zones. You can check that 6 checkpoints, 3 bodies of water. I will explain you later. Okay, she was with her group of teenagers went to an expedition to Antarctica. Okay, my journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras. Okay, north of the equator, equator के north में my journey began. Okay, and here you can see her journey begin from Madras and involved crossing 9 time zones. जैसे हम सभी जानते हैं that सभी countries का अपना अपना time zone होता है. While going to Antarctica, the author उसने क्या क्या क्रॉस किया उन्होंने 9 time zones, different countries के 9 time zones उन्होंने क्रॉस किए. 6 चेक पॉइंट्स उन्होंने क्रॉस किया. 3 वाटर बॉडीज किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं लाइक ओशन, रिवर एंड एट लीस्ट मैनी इकोस्फीयर्स. और काफ़ी इकोस्फीयर्स भी उन्होंने जहाँ पर लाइफ होती है, जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन दिखने को मिलता है. बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट. और बाय द टाइम, और तब तक वो कहाँ, मतलब उन्होंने फाइनली एक्चुअली आई सेट फुट ऑन द एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट.
I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. जब उन्होंने उस समय जब देखा, जब फर्स्ट स्टेप उन्होंने कहाँ पर रखा, अपना एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट में रखा, एट द टाइम आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर, कितना टाइम वो ट्रेवल कर चुकी थी, ऑलमोस्ट 100 आवर्स, इन अ कम्बिनेशन ऑफ अ कार, एन एरोप्लेन और अ शिप. सिर्फ सिंगल एक व्हीकल यूज़ नहीं किया उन्होंने. शी crossed, she had been traveling over 100 hours, okay, with the use of car, an aeroplane or a ship. So my first emotion on facing Antarctica, expensive wide landscape and uninterrupted blue horizon, was relief. और first step, first emotion उनका क्या था, because she was very excited to reach there. So first emotion क्या था, on facing Antarctica's expansive white landscape, expansive means covering wide area, okay, तो वहाँ पर क्या दिखाई दिया उनको, एंटार्क्टिका का एक्सपेंसिव एरिया किससे कवर्ड था, वाइट लैंडस्केप से. एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वॉज रिलीफ. और जो ब्लू हॉरिजन उनको दिखाई दे रहा था, हॉरिजन आप सभी जानते हैं क्या होता है, कि जब हमें दूर से अर्थ और स्काई का कॉम्बिनेशन मीन्स एक बॉर्डर लाइन दिखाई देती है, हम उसको हॉरिजन बोलते हैं. अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वॉज रिलीफ. फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर. और फॉलोड अप, प्रोफाउंड मीन्स वेरी ग्रेट और यू कैन से इंटेंस, ओके. तो वहाँ पर पहुँचने के बाद इमीडिएटली उनको क्या दिखाई दिया, एक प्रोफाउंड वंडर, मीन्स शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड. और वंडर किससे हुई, वो वंडर एट इट्स इमेंसिटी. और उसकी जो इमेंसिटी थी, मतलब इतना ज़्यादा उनका जो साइट ऑफ द ब्लू हॉरिजन था, एट दैट वॉज वेरी कंफर्टिंग, ओके. और नेक्स्ट इमोशन क्या था, दैट वॉज फॉलोड दैट ऑफ वंडरमेंट. एंड ही द नरेटर वॉज एस्टोनिश्ड बाय द फैक्ट. और वो इफेक्ट क्या था, आगे आपको पता लगेगा. इट्स आइसोलेशन, बट मेनली एट हाउ देयर कुड हैव एवर बीन अ टाइम, कि एक टाइम ऐसा भी था पास्ट में, व्हेन इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, कि एक टाइम ऐसा था जब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ वहाँ जाकर, इस फैक्ट से उन्हें एस्टोनिशमेंट हुई, हैरानी हुई, दैट देयर वॉज वंस अ टाइम when India and Antarctica were geographically connected. मतलब दोनों ही किसका पार्ट थी, सेम लैंड मास का पार्ट थी. Now look at here, the narrator boarded a Russian research ship, Russian research vessel, whose name which was named as Academic Sokolsky. और वो किसकी तरफ बढ़ रही थी वो शिप, it was heading towards the coldest, driest and the windiest continent in the world, Antarctica. Okay, now you will find out part of history. Now look at here, 650 million years ago, a giant southern supercontinent Gondwana did exist. Here this picture describes you before and after. Before and after means before वाली पिक्चर में आप clearly you can see here that all the like North America, South America, Africa, Europe, ये सभी पहले क्या थे, सभी मिले हुए थे. और आफ्टर वाली पिक्चर में आप इजीली क्लियर देख सकते हैं that now they are separated. अब क्या हो चुके हैं, ये अलग अलग हो चुके हैं. So 650 million years ago, पहले क्या हुआ करता था, एक बहुत बड़ा जाइंट साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नेम क्या था, गोंडवाना, डिड एग्जिस्ट. ठीक है, वो वहाँ पर एग्जिस्ट किया करता था. ओके, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट. पहले चीज़ें बहुत अलग थी. और कैसे चीज़ें अलग थी, ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल स्कीन, कभी भी वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा था. द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, hosting a huge variety of flora and fauna. Okay, but for 500 million years गोंडवाना thrived मतलब ये सारी चीज़ें, thrived means ये सारी जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, यूरोप, ये सभी क्या हो गए, अलग अलग हो गए. बट अराउंड द टाइम
when the dinosaurs were wiped out, an age of mammals got underway and the land mass was forced to separate into countries. अभी हमने पीछे एक्सप्लेन किया कि इंडिया और अंटार्कटिका वो दोनों क्या हुआ करते थे, दे वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, एक ही लैंड मास के पार्ट हुआ करते थे और अब वो दोनों क्या हो चुके हैं, डिफरेंट हो चुके हैं. ओके तो ये सभी चीज़ें जो पहले हमारा अर्थ था तो उन्होंने एक्सप्लेन किया वहाँ का क्लाइमेट पहले क्या था, बहुत वार्मर था, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन. ओके एंड गोंडावना थ्राइव्ड, जैसे ही गोंडावना जो ह्यूज सबसे बड़ा जाइंट साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, जैसे ही वो थ्राइव्ड हुआ, डायनासोर्स फ्लोरा और फोना जो थे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए एंड लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, और लैंड मास फोर्स हुआ कि वो अलग अलग कंट्रीज में क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए. इट सेंटर्ड रफली अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका. बिफोर और आफ्टर का डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं. ओके हाउ मीन्स आफ्टर अ जाइंट साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडावना थ्राइव, तो क्या हुआ उसके बाद सभी कंट्रीज इंडिया और अंटार्कटिका स्पेशली ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए. ओके सो मिलियन ऑफ ईयर्स एगो there was a supercontinent known as Gondwana, okay, from which Antarctica and India are supposed to have been parted off. Okay, the situation however was completely different from how it is right now. Clear? पहले कैसे different थी, because there were no humans, the climate was warmer which gave rise to huge variety of, वार्मर था तो जिसकी वजह से क्या वैरायटी थी, फ्लोरा एंड फोना की वैरायटी थी. गोंडावना फ्लोरिश्ड फॉर 500 मिलियन ईयर्स, और तब तक क्या हो चुके थे, डायनासोर्स गॉट एक्सटिंक्ट, ह्यूमन बीइंग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है, डायनासोर्स वहाँ से वैनिश हो चुके थे और ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्टेंस में आ चुके थे. सो ह्यूज कॉन्टिनेंट, ये जो गोंडावना था, वॉज देन फोर्स्ड इनटू सेग्रीगेशन to form countries and the world as we know of it today. जो हमें आज पता है, हम आज प्रेजेंट डे जो अंटार्कटिका के बारे में जानते हैं, तो ये सभी किसके ब्रेक होने के बाद हुआ, अ जाइंट साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडावना. क्लियर? नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट. थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन. चीज़ें क्या थी पहले, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट. ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, ह्यूमन्स कभी अभी वहाँ पर नहीं थे. एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और क्लाइमेट कैसा था, बहुत वार्मर था. एंड होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडावना क्या हुआ, थ्राइव्ड हुआ. बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, जैसे ही डायनासोर्स वहाँ से वाइप आउट हुए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडर वे, द लैंड मास, जो लैंड मास किसको जोड़े हुए था पहले, अंटार्कटिका और इंडिया को, वो लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, और वो लैंड मास ने फोर्स किया कि हमारी जो कंट्री है वो सेपरेट हो जाए, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे. और उसकी शेप कैसे बन गई हमारे ग्लोब की, जैसा कि आज हम देखते हैं. मीन्स आज के मैप में अगर हम क्लियरली देखेंगे तो इंडिया और अंटार्कटिका के बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है, और ये गैप पहले नहीं था. पहले फ्लोरा और फोना बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी में थी. जैसे ही वो सुपर कॉन्टिनेंट गोंडावना ब्रेक हुआ, जाइंट सुपर कॉन्टिनेंट, उसके बाद ये इंडिया और अंटार्कटिका और जो डिफरेंट और अदर कंट्रीज थी वो सभी क्या हो गए, सेपरेट हो गए. नाउ लुक इट हेयर, द विजिट वॉज टू नो मोर अबाउट अंटार्कटिका. मीन्स दैट विजिट, जो हम विजिट वहाँ पर हुआ, जो ऑथर ने वहाँ विजिट किया, वो किसके बारे में विजिट किया, अबाउट टू नो मोर अबाउट अंटार्कटिका. इट इज़ टू अंडरस्टैंड the significance of Cordilleran faults and the pre-Cambrian granite shields, ओजोन, कार्बन, एवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन. ये सभी चीज़ों के बारे में आपको मैं अभी एक्सप्लेन आगे करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. डायनासोर्स गोट एक्सटिंक्ट, ह्यूमन बींग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, and that huge continent, as you can see here, the icy huge continent was then forced into segregation to form countries and the world as we know of it today.